welcome back to my channel. It's me, Shizel, and if you're new, welcome, and if you're not new, welcome back again. This is going to be another story time. I wanted to make this video like 2 days before, but I was busy in my Insta and TikTok account. I actually made new accounts for Insta and TikTok. Actually, I my real account of Insta was private, where I have my friends and family members. So I don't wanted to use it for like public accounts. So I actually made a new Insta and new TikTok account. So I will be putting them in description or here below. So go follow them, and they're like, I am trying to make them aesthetic accounts. So I hope that work out. And yeah, one more thing. I am like, I make faceless content there. So feel free to like subscribe it or like follow it. And let's get back to our story. Okay. So this story is not mine. It's actually of a friend of mine. Like, she's elder than me. I know I have a lot of elder friends, like who are like in universities or like have done their universities. So it it's a story of my friend who actually moved to Lahore for her university sessions. I've seen here कि I am gonna call her Mariam for this video. She moved to Lahore after convincing her parents a lot. पाकिस्तान में ऐसा होता है कि you all know कि हम लोग इतनी आसानी से किसी दूसरी सिटी नहीं जा सकते पढ़ने के लिए. हम लोग नहीं, और मे बी a lot of other families where there is this still that taboo कि वो मतलब बाहर या किसी और सिटी में नहीं जा सकते. So she was from that kind of family, and so she convinced her parents because she actually wanted to go to Lahore to start her medical. अब ये सीन है 2023 के एंड का. सो शी कन्विंस हर पेरेंट्स अलॉट. तो उन्होंने कहा कि लेट्स मेक दिस सेंस कि तुम अपने किसी फ्रेंड्स को लाइक एग्री करो कि वो और तुम लाइक लड़कियाँ किसी अपार्टमेंट में रह सकें एंड डिवाइड द रेंट इन बिटवीन योर सेल्फ. ओके. सो शी लाइक कन्विंस्ड हर अदर टू फ्रेंड्स जिनकी फैमिली भी सेम इसी तरह की थी. सो these three girls decided to rent an apartment in Lahore near the university so they can move in and like divide the rents. अब सीन ये था कि इन दिसंबर 2023 और लाइक इन नवंबर के इसी टाइम के मिड में लाइक जब फुल सर्दी चल रही थी, धुंध वाला मौसम था, दिस ऑल दे लाइक एक्चुअली शिफ्टेड देयर. सो अब जब वो शिफ्ट कर जाते हैं तो देयर वॉज द अपार्टमेंट ओनर who is a man and he gave them the keys, and उसके लिए उससे पहले उन्होंने जो एडवांस रेंट होता है वो पे किया एंड देन दे लाइक मूव इन. उनका इतना ज़्यादा सामान नहीं था, ऑब्वियसली बच्चियों के स्कूल केस थे लाइक उन तीनों बच्चों के, उन तीनों लड़कियों के, तो वो आराम से लाइक चलेगी. इट वॉज माइंड दैट इट वॉज लाइक फर्निश्ड. सो उनको इतना मसला नहीं हुआ, मूव इन करने में उन्हें इतना मसला नहीं हुआ. So let's skip to the day one of the apartment move-in. अब क्या होता है कि वो तीनों लड़कियाँ लाइक मरियम और मरियम की दो फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड लिविंग देयर. और पहले हफ्ते में तो वो अपना सब कुछ सेटअप करती हैं, लाइक ग्रॉसरीज करती हैं एंड एवरी अदर थिंग दे नीडेड टू फिक्स देयर एंड स्टार्ट फॉर देयर एडमिशन्स व्हाटएवर लाइक. और उसके बाद सीन ये होता है. सो द टाइम स्किप टू द फर्स्ट वीक. The other two girls which started living with Mariam in the same apartment, they were at university at that time because of their classes. Mariam didn't have the same classes as them, so she was like arranging all the things in the balcony of the apartment. Now let me tell you one thing. अब उन्होंने setting इस तरह की थी कि there was two metallic chairs like facing each other and दरमियान में था एक कॉफ़ी टेबल, ठीक है. एंड उसके बाद पिछली वाली साइड पे लाइक ये बैल्कनी है और उसके बिल्कुल सामने अंदर की तरफ किचन है, ठीक है. और इस वाली साइड पे एक रूम है और इस वाली साइड पे दूसरा रूम है. तो और ये वाला सारा लिविंग रूम वाला एरिया है, ठीक है. तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ. द बैल्कनी हैड लाइक टू चेयर्स और दरम्यान में था कॉफ़ी टेबल. मरियम जो थी उस वक्त टेबल को साफ़ करी थी एंड शी टोल्ड मी दैट उस वक्त जो
हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी, और माइंड दैट कि हवा इतनी इधर से चल भी नहीं सकती कि वो चेयर हिलने लग जाए। ओके, सो बिकॉज दे वर ऑफ मेटल और हैवी थी। तो वो कहती है कि मैं जिस टाइम डस्टिंग करके लाइक अभी अंदर जाने लगी थी, मुझे पीछे से ऐसा लगा कि चेयर हिली है, और चेयर की जो स्क्वीक वाली आवाज़ होती है ना, लाइक किसी भी मेटल वाली चीज़ को आप लोग खाली फर्श पे से रगड़ोगे या खींचोगे तो उसकी आवाज़ आई, एक रगड़ पैदा होती है। लाइक आई कांट मेक दिस नॉइज़ राइट नाउ बट यू कैन गेस दैट। ओके, तो वो आवाज़ आई एंड शी टर्न्ड एंड शी लुक्ड एट, बट जो चेयर्स थी वो अपनी जगह पर थी। सो शी थॉट कि वो उसका वहम था एंड शी वेंट इनसाइड। अब सीन क्या होता है, सीन स्किप्ड टू दैट इवनिंग। उसी इवनिंग जिस दिन उनका पहला वीक था उस अपार्टमेंट के अंदर, और उसकी दोनों दोस्तें जो थी जो क्लासेस लेने गई थी, दे केम बैक नियर 4:30। और जब वो दोनों दोस्तें वापस आती हैं, मरियम उन्हें बताती है वो सारा सीन, एंड दे वर लाइक इट्स ओके, वी जस्ट मूव्ड इन एंड वी डोंट हैव टू मेक दैट टाइप ऑफ असम्पशंस फॉर अवर न्यू अपार्टमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत देर तक रहना है, सो वी हैव टू लाइक एडजस्ट हेयर, और यू नो आवर फैमिलीज वोंट अलाउ अस टू स्टे टुगेदर और टू स्टडी इन दिस सिटी। अब उनकी मजबूरी थी, सो दे हैव टू इग्नोर दैट स्क्वीक साउंड ऑफ द चेयर फॉर टाइम बीइंग। अब क्या होता है कि जो मरियम होती है, शी वॉज लाइक एक्चुअली like worried about that and concerned about the sound that came in the afternoon। तो वो रात को दोबारा उस जगह पर जाती है, लाइक इन द बैल्कनी, और वो जाके वहाँ पे पड़ी होती है। या लाइक मैं तुम लोगों को बताती हूँ, उसने कॉफ़ी टेबल पे इस साइड पे एक मग रखा हुआ था एंड शी वॉज लाइक फेसिंग द अदर चेयर, जिसके ऊपर कोई भी नहीं था बैठा उस टाइम पे। सो अब जो पड़ी होती है ना, शी सेट कि जो बाकी दो बच्चे थे ना, जो बाकी दोस्त की दोस्तें थी, वो एक इस वाले रूम में और एक उस वाले रूम में थी, लाइक सेपरेट रूम्स में थी, और ये बैल्कनी में थी, क्योंकि इन लोगों के टेस्ट चलने वाले थे और इस वजह से वो लोग एक दूसरे से लहदा थी ताकि दे कैन कॉन्सेंट्रेट। तो उस रात ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, नॉट इवन इन द बैल्कनी। तो अगला दिन चढ़ता है एंड दे हैड क्लासेस नियर लाइक 10 और 9। तो वो तैयार होते हैं सब एंड वन ऑफ देम मेक ब्रेकफास्ट फॉर द अदर टू एंड हर सेल्फ। तो इतने टाइम में उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वॉशरूम जो है ना इस वाले रूम का, उसके अंदर से वो लॉक हुआ है, लाइक इट हैव दैट क्लिकिंग साउंड, क्योंकि जब आप कोई दरवाज़ा बंद करते हो या उसे लॉक करते हो, कुंडी की आवाज़ जो होती है वो क्लिक करती है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जब तीनों को लगा कि उस वाले वॉशरूम से वो आवाज़ आई है, एंड एक टाइम के लिए तो वो सब लाइक पॉज कर गए, जैसे एक्चुअली एक बंदा रुक जाता है, लाइक क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ आई, एंड दे वर लुकिंग एट ईच अदर्स फेस, ठीक है। और जो मरियम थी ना, शी टोल्ड हर अदर फ्रेंड कि भाई मान जाओ, मैंने कल खुद चेयर की आवाज़ सुनी थी बालकनी में, इस वजह से मैं तुम लोगों को कह रही थी कि इस घर में कुछ है, बट यू गाइज वरंट लाइक बिलीविंग मी, और यू गाइज मेड मी शट अप। अब ये आवाज़ जो है लाइक इट्स एक्चुअली रियल, यू आर हियरिंग टू। तो इसके जो बाकी दो दोस्त होते हैं वो भी लाइक इस बार कंसर्न हो जाते हैं कि भाई ये आवाज़ क्यों आई, बट कुछ ना कुछ करा के वो लोग निकल जाते हैं और वो जो यूनिवर्सिटी के लिए चले जाते हैं। और शाम को जब वो सब इकट्ठे आते हैं, लाइक वेट लेट मी टेल यू द बिगेस्ट थिंग जो उनकी जाने के बाद होती है, दे ओपन द डोर और वो अंदर आते हैं, और यू नो लाइक आप लोगों को कार्ड डालना पड़ता है, सो आप लोगों की जो लाइट्स हैं वो टर्न ऑन हो जाएं। सो वो अंदर आते हैं बट लाइट्स आर ऑलरेडी टर्न ऑन विदाउट एनी कार्ड। लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग भाई, मतलब कैन यू बी फॉर रियल। उसको छोड़ो, लाइक इट्स नॉट इवन अ बिगेस्ट थिंग। जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं लाइक डर आगे, दे नो बाय दिस पॉइंट कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ कुछ हो रहा है, बट दे आर नॉट लाइक बिलीविंग इट, दे आर इन डिनाइल, बिकॉज दे नो कि अगर उन्होंने अपने घर वालों से कुछ कहा तो उनको वापस जाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दे वर लाइक इन डिनाइल। वो बार बार उस चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी, हमने कोई चेयर की आवाज़ नहीं सुनी, हमने दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ नहीं सुनी। बट अब दे कांट इग्नोर दैट थिंग। जब वो वॉक करते हैं ना, लाइक दे एंटर्ड द लिविंग रूम, जिसके बिल्कुल सामने बैल्कनी थी और इस साइड पे 2 कमरे थे। तो जो लिविंग रूम होता है ना, वहाँ पर उनके जो मेकअप वाला बैग था उसमें से सब चीज़ें निकली थी, एंड ऑल द थिंग्स फॉर लाइक जो फाउंडेशन की बॉटल थी, इट वॉज लाइक ऑफ मेड ऑफ ग्लास, और वो टूटी पड़ी थी इन द मिडल ऑफ द लिविंग रूम, और सारी फाउंडेशन वॉज लाइक स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर। और तब
द वियर्डेस्ट थिंग वाज कि बालकनी का जो दरवाज़ा था इट वाज लॉक्ड, लाइक फुली लॉक्ड, तो ना कोई बिल्ली अंदर आ सकती थी। और उसने जो मरियम थी शी सेड दैट कि वो जो फाउंडेशन थी वो दूसरी बच्ची की थी। लाइक ये लोग 3 थे ना, उनमें से जो दूसरी थी उसकी थी, और उसका रूम था इस साइड पे, ठीक है। और वो जो फाउंडेशन थी वो टूटी हुई थी इस साइड पे, लाइक इस वाले रूम के बिल्कुल फ्रंट वाले दरवाजे के पास फर्श के ऊपर। उसका मेकअप बॉक्स पहले तो आया लिविंग रूम के अंदर खुद बहुत जल के, फिर उसमें से फाउंडेशन निकली और फाउंडेशन नीचे गिरी और फाउंडेशन टूट के बिखर गई। लाइक दिस इजंट इवन मेकिंग सेंस। तो इस बार वो लोग इसे डिनाई नहीं कर सकते थे, सो दे कॉल्ड द ओनर। उन्होंने उससे बात की एंड ही वॉज लाइक कि तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग ज़रूर अपना रेंट काम करवाना चाहते हो, लाइक यू वॉन्ट समथिंग कि तुम लोगों को फ्री में मिल जाए, ये वो। ही लाइक जस्ट इंसल्टेड देम एंड इग्नोर्ड द थिंग। और उसने कहा अगर नहीं रहना तो छोड़ दो, ठीक है। और आई कॉन्ट डू एनी थिंग, यू गाइज आर लाइक मेकिंग दिस ऑल अप बिकॉज यू वॉन्ट टू लाइक यू यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट, या तुम लोग इसका रेंट कम करवाना चाहते हो। ही टोल्ड देम कि तुम लोग ड्रामा कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों को अच्छी अपार्टमेंट मिल गई है कम पैसों में, सो यू गाइज वांट मी टू लाइक लेसन द मनी इवन मोर। मैं होती ना भाई साहब, पैसे कम करवाने के लिए कोई अपनी जान के साथ क्यों खेलेगा? लाइक व्हाई, एक्सक्यूज मी। और फिर मरियम को गुस्सा आता है बट शी डिडंट इवन से एनीथिंग। उसने कॉल कट कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि यार अब वो अपने घर वालों से तो कांटेक्ट करने से रहे। बट माइंड दैट कि अभी इनका पहला वीक है और के 2 दिन गुजरे हैं, ठीक है। अभी अगले दिन जो तीसरा दिन होता है, उस दिन वो कपड़े धो रहे होते हैं। लाइक देयर वाज दैट एरिया अंडर द किचन सिंक, या आप लोग कुछ कह सकते हो लाइक काउंटर, उसके नीचे थी उनकी एक वॉशिंग मशीन एंड उनमें उन्होंने कपड़े डाले हुए थे, लाइक देयर स्कार्फ्स एंड एवरीथिंग। अब मरियम कहती है कि उसका एक स्कार्फ था वो स्किन कलर का था, ठीक है। लाइक उसके ऊपर कुछ भी कोई भी निशान नहीं था, प्लेन स्किन कलर होता है ना वो वाला स्कार्फ था, और वो धुल रहा था मशीन के अंदर। और शी सेड कि जब वो उसे सुखाने जाती है ना, तो शी नोटिस कि वो जो स्कार्फ होता है वो नीचे वाले एरिया से ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ के ना नोच के फाड़ा है, लाइक समवन स्क्रैच्ड इट सो बैडली कि उसके जो थ्रेड्स है ना वो लाइक इस तरह लटके हैं। और उसने कहा था कि मेरे कोई भी स्कार्फ में ना तो कोई इतना सा भी टुकी या कोई निशान लगा हुआ था कि जिसकी वजह से ज़्यादा फट सकता, ना यहाँ पे कोई चूहा है जिसकी वजह से फटता, और मशीन भी बिल्कुल ठीक थी। अगर ठीक थी तो बाकी सबके कपड़े अच्छे तरीके से धुल गए थे ना। उसके दुपट्टे के अंदर लाइक इतना बड़ा ऐसे करके ये स्क्रैच, लाइक जिसे कहते हैं नोचना था। सो इस बात पे वो इतना डरती है कि शी स्टार्टेड क्राइंग, और उसने अपनी उन दोनों दोस्तों को बुलाया एंड दे मेड दैट डिसीजन कि वो हॉस्टल में मूव कर जाएंगे एंड दे विल नॉट टेल देयर फैमिली। अब सीन ये होता है कि उन्होंने इस महीने का तो इस अपार्टमेंट का रेंट दे दिया हुआ था, सो जो ओनर था वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। दे लाइक लिटरली पैक्ड ऑल ऑफ देयर थिंग्स, लॉक्ड द डोर ऑफ द अपार्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, और वो लोग जाते हैं हॉस्टल वाली साइड पे और वहाँ पर जाके 2 दिन के लिए एक कमरा लेते हैं एंड वो तीनों उस रूम में रहते हैं। एंड फिर वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, लाइक अब हम बताएं अपने घर वालों को कि दैट वी लेफ्ट दैट अपार्टमेंट, और अगर हम उन्हें कहेंगे कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं दैट सिचुएशन विल बी सो वर्स कि वो हमें वापस बुला लेंगे। अब वो लोग इस टेंशन में ही होते हैं कि दे गॉट अ कॉल फ्रॉम द ओनर। ओनर कहता है कि मैं तुम लोगों के पास आया था तो जो कल वाला मसला था उसकी जांच पड़ताल करने, बिकॉज लाइक भाई साहब मेक एक्चुअल सेंस। एक 3 लड़कियां एक अपार्टमेंट में रह रही हैं और दे टोल्ड यू लास्ट नाइट कि कोई मसला था बट दैट टाइम यू इग्नोर्ड देम, और अब तुम वापस आ रहे हो लाइक इन द इवनिंग 8-9 बजे के करीब। वाई, लाइक बॉय, भाई साहब। और वो बंदा उन्हें कॉल करके कहता है कि मैं आप लोगों के अपार्टमेंट के बाहर हूँ, तो आप लोगों के अपार्टमेंट पे ताला क्यों लगा, आप लोग कहाँ पे गए हो, जहाँ पर मर्जी गए हो, तुम्हें क्या? दिस इज़न्ट इवन मेकिंग सेंस। और फिर इस टाइम मरियम को पूरी तरह शक होता है कि दैट ओनर न्यू के घर में क्या सीन चल रहा था, बट ही स्टिल रेंटेड देम द अपार्टमेंट, और मे बी वो ये चेक करने आया कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। नेवर माइंड, उसने उसको बला फुसला के कॉल कट कर दी। उस टाइम उसने अपनी दोनों दोस्तों से बात की और दे एग्रीड कि उन्हें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। तो उन 3 दोस्तों में से एक थी माहा, लाइक आई एम नॉट टेलिंग हिम इन द रियल नेम। सो उसने अपने बड़े भाई को कॉल की एंड शी एक्सप्लेन्ड ऑल द सिचुएशन। माहा के घर वाले जो थे वो थोड़े लाइट थे, लाइक
कंपेयर टू दीज मरियम एंड दैट अदर गर्ल। तो उसने उसको सब सिचुएशन बताई एंड और फिर जो वहाँ का भाई था उसने अपने घर वालों से बात की कि हम लोगों को मरियम और दूसरी बच्ची के घर वालों से बात करनी चाहिए कि लेट देम स्टे इन अनदर अपार्टमेंट, कोई और अपार्टमेंट देख लेते हैं, लाहौर में इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं एंड दैट इज़ इन द एंड, आप लोग प्लीज़ कुछ करें लाइक। फिर उसके जो भाई ने उसके माँ के पेरेंट्स गए मरियम के पेरेंट्स के पास एंड दे कॉल्ड द अदर गर्ल्स पेरेंट्स और इस बारे में सारी बात हुई। एट फर्स्ट मरियम के पेरेंट्स नहीं माने बिकॉज दे थॉट कि इस तरह की चीज़ें नहीं है लाइक ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि दीज थिंग्स डजेंट इवन एग्जिस्ट, लेकिन इट्स इन कुरान कि अल्लाह ने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो सो ऑब्वियसली दे आर इन दिस वर्ल्ड। बट कुछ लोग उनसे इनकाउंटर करते हैं, कुछ नहीं करते एंड जो नहीं करते वो बिलीव नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। सो द थिंग वॉज सिंपल, मरीम के घर वालों को मानने में 5 दिन लगे एंड दैट टाइम उन्होंने हॉस्टल वालों को दोबारा 3 दिनों का किराया दिया और वो लोग वहाँ पर रहे। तो जो 6th डे था लाइक इट वॉज द सेकेंड वीक ऑफ देयर इन लाहौर, ठीक है। तो मरीम के पेरेंट्स की कॉल आती है मरीम को। तो मरीम के पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा वी नो ऑल द सिचुएशन एंड वी वांट यू टू चेंज द अपार्टमेंट, लाइक वी नो यू आर इन हॉस्टल राइट नाउ, अपार्टमेंट वाले से हमारी बात हो गई है, यू गाइज वॉन्ट गो देयर एनी मोर। और इस बार मरीम को लगा कि हर फादर वॉज लाइक एक्चुअली कंसर्न, जो कि आमतौर पर नहीं होता। उसने भी दोनों दोस्तों को खुशखबरी दी एंड दे ऑल थ्री गर्ल्स वेंट टू फाइंड ऑल द ओन अपार्टमेंट हंट गाइस, मतलब दूसरे अपार्टमेंट्स को देखने गई कि कहाँ पे रह सकते हैं एंड ऑल दीज। और इस चक्कर के बाद लाइक उन्हें एक अपार्टमेंट मिल गया और वो उस अपार्टमेंट में रहे और लाइक देयर स्टडी स्टार्टेड। और इस तरह उनकी लाइफ गुजरी थी व्हेन द समर वेकेशन विंटर वेकेशन केम और वो लाइक कुछ दिनों के लिए अपने घर आए। उस दौरान मरीम कहती है कि उसके बाबा ने उसे बताया कि दैट ओनर ऑफ द अपार्टमेंट जिसमें वो पहले रह रहे थे, ही न्यू कि उस अपार्टमेंट में कुछ ऐसा वैसा था। मैंने तो पहले कहा था कि वो बंदा क्यों आएगा उनसे मिलने, जब उसे पता था कि उसने इन्हें इग्नोर किया। लाइक भाई यू आर नॉट इवन मेकिंग फ्रीकिंग सेंस, तू आ क्यों रहा है। तो उसके पापा ने कहा कि उस अपार्टमेंट ओनर को पता था कि वहाँ पे क्या था और उसने हमारे सामने माना भी था जब हमने उसे थोड़ा डरा के लाइक रोब और गुस्से में बात की। सो ही सेड दैट कि अपार्टमेंट ज़्यादा बच्चे यूज़ नहीं करते और जो भी आता है लाइक एक दो दिन के लिए रहता है तो उन्हें इतना पता नहीं चलता। इन्होंने ज़्यादा देर के लिया तो इसलिए इन्हें पता चला, इनके साथ वो चीज़ें हुई जो नॉर्मल लोगों के साथ आई थिंक नहीं होती। तो फिर उसके बाबा ने उन अपार्टमेंट ओनर से वो किराया भी वापस लिया और उस किराए से वो दूसरे अपार्टमेंट में रहने गए, राइट। तो दिस वॉज ऑल द स्टोरी। और मरियम ने कहा कि जब उसे पता चला था ना तो उसने फिर अपनी दूसरी 2 दोस्तों को नहीं था बताया कि वो लोग ज़्यादा परेशान ना हो या उनकी फैमिली परेशान ना हो। बस इस वाले मरियम के पापा को पता था और उन्होंने वो जो पैसे थे ना सिर्फ मरियम के हिस्से के वापस लिए थे क्योंकि वो दूसरी वाली फैमिली को बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे एंड ऑब्वियसली इतना ज़्यादा किराया नहीं था, लाइक टाइम वेंट बाय। और हाँ मैं बता दूँ कि उन्होंने जो बाकी थोड़े दिनों को किराया रह गया था ना वो लिया था, जो दिन वो लोग वहाँ पर रहे थे वो किराया नहीं लिया था। So yeah guys, that was it for this video. I know it wasn't that scary but I hope you guys liked it. I honestly have a lot of videos in store for you guys but आहिस्ता आहिस्ता करके राइट, इतनी ज़्यादा एक साथ सुना दूँगी तो भाई मुझे खुद डर लग रहा है। मतलब इस टाइम में जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो हमेशा रात का टाइम होता है, 2:28 हुए हैं रात के। एंड आई नो मैं इतना ज़्यादा लेट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम तो वैसे भी पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे इतनी आवाज़ आती है ना, बाइट से गुजर रहे थे कुछ भी, कभी आइसक्रीम वाले गुजर रहे थे, कभी कुछ गुजर रहा था, कभी कुछ गुजर रहा था, वो सारी आवाज़ ना डिस्टर्बेंस पैदा करती है। सो मैं अपनी नींद कुर्बान करके वीडियो बनाती हूँ और ड्रामे थोड़े बंद करती हूँ। हाँ तो गाइस आई विल keep on posting all the videos. I'm going to like drop my Insta and TikTok account here, so guys go follow them. I know that you guys will love the videos I will post there. So till then I hope you guys loved this video. Stay tuned for the next video. I'm gonna post it soon or in this week or another week. Enjoy करो, मैं इस तरह वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। सो प्लीज़ गाइस पागलों की तरह देखते रहो। लाइक ये मैं कैसी एडवाइस दे रही हूँ गाइस, प्लीज़ मेरी एडवाइस ना समझा करो। लाइक have rest, you guys are so important to me. And one more thing, I passed
10.5k views on all the videos, but this video पे 10.5k views. लेकिन आई एम हैप्पी कि ये सब कुछ एक माह के अंदर अंदर हो गया, एंड आई एम सो ग्लैड कि आई नेवर स्टॉप डूइंग दिस. अगर मैं रुक जाती तो दिस वुडंट हैव हैपेंड. And I love you guys so much. I will always come back here and inform you all about the other stories, and definitely I love you all. And yeah, follow my Instagram so you guys will get to know कि मैं अगली कौन सी story post करने लगी हूँ, and I will drop a poll there, so from that you guys will select the next story time I'm gonna tell you all. So till then, take care, bye bye, I love you.